Hello, my dear students. How are you? I hope you must be doing very well. तो आओ शुरू करते हैं बेटा जी आज का चैप्टर, आज का टॉपिक। और आज का जो चैप्टर है वो है हमारी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन। और जो टॉपिक है वो है चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी विद हाइट। यानी कि अगर हम किसी बॉडी को फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू ए हाइट h से लेके जाएं तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज करेगी। एंड बिफोर आई कम टू दिस आर्टिकल, let me tell you the relationship between gravitational potential and gravitational energy, potential energy. We know that the gravitational potential at a point at a distance small r from the center of the earth is given by V equal to minus gm divided by r. ये हमने प्रूव किया था इससे पहले वीडियो में that the gravitational potential, इसकी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि gravitational potential at a point in a gravitational field is defined as the amount of work done in bringing a unit test mass from infinity to that point without acceleration. और इसका जो फार्मूला निकाला था that was V equal to minus gm divided by r, where capital G is the universal gravitational constant and capital M is the mass of the earth and r is the distance of the point where the gravitational potential is V from the center of the earth. And let us call this as number 1. And the gravitational potential energy of a body of mass small m at a distance small r from the center of the earth is given by u equal to minus g m m divided by r. यहाँ पे भी ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये मास ऑफ अर्थ है, ये मास ऑफ द बॉडी है एंड r इज़ द डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट। यहाँ पे बॉडी को रखा है, यहाँ पे उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है कैपिटल U, उस पॉइंट का सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस है स्मॉल r. लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2. Now we divide equation 1 by equation 2. So dividing equation 2 by equation 1, we get capital U over capital V equal to capital U की वैल्यू है minus GMM divided by small r. और क्योंकि V से डिवाइड कर रहे हैं तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो माइनस साइन तो आएगा ही आएगा, r चला गया ऊपर और नीचे आ गया GM. Now negative negative will become plus, r will go with r, g will go with g, m will go with m, and we are left with only small m, small m. Now we cross multiply, we get capital U equal to v into m, v into m. तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एंड the gravitational potential at the same point. Capital V is the gravitational potential at a given point and capital U is the gravitational potential energy of a body of mass small m at the same point. So what is the relationship? That means the gravitational potential energy of a body at a point is the product of the gravitational potential at that point and the mass of the body. So that is the relationship between ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. अब कई बार ऐसा न्यूमेरिकल आ जाता है जिसमें हमें m दिया होता है, v दिया होता है, u की वैल्यू निकालनी है, या m दिया है, u दिया, v की वैल्यू निकालनी है, तो वी कैन मेक यूज़ ऑफ दिस फार्मूला. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस नाउ. और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो नेगेटिव साइन आया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के साथ, इसका मतलब होता है दैट द बॉडी इज बाउंड टू द अर्थ बाय द अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स. और अगर आपने बॉडी को इसकी पोजीशन से ले जाना है टू इन्फिनिटी तो आपको वर्क करना पड़ेगा. और दूसरी चीज़, ज्यों ज्यों r बढ़ेगा त्यों त्यों GM M ओवर r की वैल्यू, जो ये ज़्यादा होगा,
ये जो पूरा फैक्टर है इसकी वैल्यू कम होगी क्योंकि आर इंक्रीज करेगा, यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यहाँ तक मैग्नीट्यूड का सवाल है। लेकिन क्योंकि नेगेटिव साइन है तो अगर इसकी वैल्यू कम होगी, इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू कम होगी, इसका मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। और अगर हम इन्फिनिटी की बात करें, when r equal to infinity तो u आ जाएगा 0। That means the gravitational potential energy of the body goes on increasing as its distance from the center of the earth increases and it becomes 0 at infinity, and potential energy of the body equal to 0 at infinity is called zero level of gravitational potential energy। इसी तरह ये जो gravitational potential energy है, gravitation potential जो है, this is also 0 at infinity and that is the maximum value of gravitational potential। zero value है, चाहे वो gravitational potential की है चाहे वो gravitational potential energy की है, that is the maximum value of V or you can say U। And now I come to this topic that the change in gravitational potential energy of a body with height. Let us suppose the gravitational potential energy of a body on the surface of the earth। मान लो ये अर्थ है, this is earth, center of the earth, surface of the earth। तो यहाँ से मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये बन गया रेडियस ऑफ द अर्थ, इतना इतना आर। जब बॉडी यहाँ पे है तो मान लो उसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है कैपिटल U1 और ये अर्थ है, इसका मास कैपिटल M है, अर्थ मास कैपिटल M, मास इक्वल टू कैपिटल M एंड रेडियस इक्वल टू कैपिटल R, रेडियस इक्वल टू कैपिटल R। अब यहाँ पे ले गए हम बॉडी को, मान लो इस जगह पे ले गए, तो ये जो हाइट है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, याद रखना हाइट हमेशा हम मेजर करते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये हाइट मान लो h है, इस पॉइंट को मैं a कह सकता हूँ और इस पॉइंट को मैं b कह सकता हूँ। और यहाँ पे जब बॉडी ले गए हम तो मान लो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है U2। और अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था दैट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द center of the earth is given by U equal to minus GMM divided by small r। So please keep in mind that here small r is the distance of the body from the center of the earth। अब मैंने आपको बोला कि मान लो जब बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है U1, और जब सरफेस ऑफ द अर्थ पे है तो उसका डिस्टेंस जो है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ वो कितना हो गया, इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ। दैट मीन्स देयरफॉर U1 इक्वल टू माइनस GMM डिवाइडेड बाई कैपिटल R। और जब हम B पॉइंट पे चले गए, H हाइट पे लेके चले गए बॉडी को, तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैंने बोला कि U2 है एंड दिस विल बी माइनस GMM डिवाइडेड बाई, अब देखिए कितना हो गया सेंटर से, अर्थ के सेंटर से बॉडी का डिस्टेंस R प्लस H। अगर मैं इसको O कह दूं तो डिस्टेंस हो गया OB, और OB को मैं लिख सकता हूं OA प्लस AB एंड OA is R and AB is H, so this is equal to this plus H। Now we have to find the change in gravitational potential energy as the body is taken, क्योंकि हमारा आर्टिकल क्या है, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी विद हाइट, कि हाइट के साथ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या फ़र्क आता है। तो डेल्टा U आ गया इक्वल टू U2 माइनस U1। This is further equal to, let us put the values of U1 and U2। U2 is minus GMM ओवर R प्लस H, और यहाँ पे ये नेगेटिव साइन है ही है, और क्योंकि ये U1 के साथ नेगेटिव साइन है तो मैं छोटी ब्रैकेट में लिख देता हूँ माइनस GMM डिवाइडेड बाई R, और आई कैन से दैट दिस इज फर्दर इक्वल टू डेल्टा U इक्वल टू, अब देखिए ये माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो ये जो प्लस वाली टर्म है इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, तो GMM ओवर R, और ये टर्म है माइनस वाली, तो माइनस आ जाएगा GMM डिवाइडेड बाई
r plus h, or you can say that delta u equal to, अब मैं इसको दोबारा लिखता हूं, डेल्टा u इक्वल टू, बोलो बेटा ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, देखिए इसमें कॉमन क्या है, GMM, एक तो ये कॉमन आ गया GMM। अच्छा R कॉमन नहीं है, लेकिन मैं R को भी कॉमन निकाल लेता हूं, और ब्रैकेट में मेरे पास बचा, यहां तो बच गया 1 और यहां बचा, क्योंकि यहां पे R नहीं था नीचे, तो R ऊपर आ जाएगा, R ओवर ये R प्लस H वैसे नीचे आ गया, R ओवर R प्लस H। अब देखो अगर मैं ब्रैकेट खोलूं तो ये क्या बन जाएगा, GMM ओवर R, ये पहली टर्म आ गई, देन माइनस साइन इज देयर, ये R से R कैंसिल हो जाएगा, और GMM ओवर R प्लस H वो दूसरी टर्म आ जाएगी। और यू कैन से दैट दिस इज फर्दर इक्वल टू GMM ओवर R एज इट इज इनटू 1 माइनस, अब इसको मैं जरा रीराइट करता हूं, 1 ओवर R प्लस H ओवर R, ये मैं R को नीचे ले गया, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन ऐसे ले गया, दिस इज फर्दर इक्वल टू GMM ओवर R इनटू 1 माइनस 1 ओवर, ये R इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, तो R ओवर R विल बिकम 1 और प्लस आ गया H ओवर R, और इसको आप छोटी ब्रैकेट में ऐसे लिख लो, ऐसे करके, लाइक दिस। और यू कैन से दैट डेल्टा U इक्वल टू, ये GMM ओवर R तो है ही है, इसको ऐसे लिख दो, GMM डिवाइडेड बाई R, और ब्रैकेट में 1 माइनस, अब देखिए यहां पे 1 प्लस H बाई R, पावर इसकी 1, ऊपर जाके पावर हो जाएगी -1, सो इट विल बी 1 प्लस H बाई R रेज टू द पावर -1 एंड ब्रैकेट क्लोज्ड। इसका नाम रख लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, इफ H is less than R, that means if this height to which the body is taken from the surface of the earth is very small as compared to the radius of the earth, और जैसे कि आप जानते हैं बेटा, रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर, तो मान लो हम 200-300 किलोमीटर भी ऊपर ले जाएं, 400 किलोमीटर भी ऊपर भी ले जाएं, सो दैट इज आल्सो वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये हम कंडीशन एक लगा लेते हैं कि अगर H R से बहुत छोटा हो, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, R नीचे ले आओ, और आई कैन से दैट H ओवर R लेस देन 1। 2 बार लेस देन लिखने का मतलब कि इसकी वैल्यू जो है दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू R, बहुत थोड़ी वैल्यू है, H ओवर R की वैल्यू 1 की तुलना से बहुत कम है। तो उस केस में ये जो टर्म है 1 प्लस H बाई R रेज टू द पावर -1, आई कैन एक्सपेंड दिस टर्म बाई यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। सो देयरफॉर, और वो क्या है, मैंने आपको बताया था मैथमेटिकल टूल्स में, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स में मैंने वीडियो डाला हुआ है, अगर आपने देखना है तो यू कैन सी इट। तो वो था कि इफ x मॉड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 1, देन 1 प्लस x रेज टू द पावर n इक्वल टू 1 प्लस nx, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस nx। एक्चुअली आगे टर्म्स आती हैं, जैसे यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे x आया, और उसका कोएफिशिएंट है x का n, फिर आगे प्लस आएगा, कुछ कोएफिशिएंट होगा, साथ में होगा x स्क्वायर, फिर नेक्स्ट कुछ कोएफिशिएंट, फिर x क्यूब एंड सो ऑन। लेकिन अगर x मॉड की वैल्यू, x मॉड मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ x, if it is very small as compared to 1, then the terms containing square and higher powers of x may be neglected, and therefore in that case I can write 1 plus x raised to the power n to be approximately equal to 1 plus nx। अब आ जाओ यहाँ पे, 1 प्लस, कंपेयर करो इससे, 1 1 है, ये कंडीशन जरूरी है कि यहाँ पे 1 होना चाहिए,
प्लस एक्स, एक्स यहाँ पे क्या है, एच बाई आर, और कंडीशन क्या है कि एक्स मॉड शुड बी लेस देन 1, और क्योंकि यहाँ पे एक्स की जगह पे है एच बाई आर, तो मैंने ये लिख दिया कि एच ओवर आर इज लेस देन 1, देन क्या लिखेंगे हम, सुनो ध्यान से, हम पूरी लाइन लिखेंगे, देन एक्सपेंडिंग 1 प्लस एच बाई आर रेज टू द पावर -1 by using binomial theorem for any index and neglecting the terms containing square and higher powers of, यहां x बोला, यहां पे क्या बोलूंगा मैं, h by r. I repeat this. If it is so, then expanding 1 plus h by r raised to the power -1 by using binomial theorem for any index and neglecting the terms containing square and higher powers of h by r, we get 1 plus h by r raised to the power -1 equal to 1 प्लस, अब देखिए ये कितना अप्रॉक्सीमेटली 1 प्लस एन एक्स, और यहाँ पे एन कितना हो गया, -1, तो ये आ जाएगा -1 इंटू एक्स, एंड एक्स इज एच बाई आर, और ये कितना हो गया, इक्वल टू 1 माइनस एच ओवर आर. सो लेट अस पुट दिस वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू ये जो यहाँ पे क्या पुट कर दें, 1 माइनस एच बाई आर. सो वी गेट देयरफॉर डेल्टा यू इक्वल टू, देयरफॉर डेल्टा यू इक्वल टू, ये बेटा जी आ जाएगा जी एम एम ओवर आर, ब्रैकेट स्टार्ट्स 1 माइनस एच बाई आर, 1 माइनस एच बाई आर, ब्रैकेट क्लोज्ड, एंड दिस इज फर्दर इक्वल टू, दिस इज फर्दर इक्वल टू जी एम एम ओवर आर, और ब्रैकेट में क्या आ गया 1, यहाँ पे क्योंकि माइनस साइन है तो -1, एंड दिस -1 विल बिकम प्लस एच बाई आर. Now this -1 will go with, ये +1 will go with -1, and we are left with GMM over R into H, और over R into R क्या आ गया, R square. So or you can say that delta U equal to GMM over R, GMM over R, और इनटू आ गया h बाई आर, इक्वल टू ये आ जाएगा जी एम ओवर आर स्क्वेयर, ये पहले लिख लिया मैंने, जी एम लिख लिया, आर इंटू आर स्क्वेयर, बाकी बचा m और h, एम एच. नाउ you know that gm over r square, it is the acceleration due to gravity on the surface of the earth. So now gm over r square equal to small g, the acceleration due to gravity on the surface of the earth. तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया gm over r square की जगह पुट कर दिया g. So therefore delta u will be equal to, ये g आ गया g m h, इसको जरा रीराइट कर लेते हैं, पहले लिखते हैं m, फिर आ गया g और फिर आ गया h. So that is the change in gravitational potential energy of a body when it is taken from the surface of the earth to a height h above its surface. अब देखिए ध्यान से देखना बेटा, अब ये जो डेल्टा u मैंने निकाला, it was u2 minus u1, that means ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे. अब मैं आपको आगे समझाने लगा हूं कि दैट इज u2 माइनस u1 इक्वल टू mgh, और यू कैन से दैट u2 इक्वल टू u1 दूसरी तरफ ले गए तो u1 प्लस हो जाएगा और प्लस आ गया mgh, एंड दिस इज फर्दर इक्वल टू, और यू कैन से दैट u2 इक्वल टू u1 कितना है, माइनस जी एम एम ओवर आर, सो माइनस जी एम एम ओवर आर प्लस एम जी एच. अब देखो बेटा जी, ये जो पहली टर्म है यहाँ पे, इट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. और जब हम बॉडी को h हाइट पे ले गए तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी u2 होगी, जो कि इससे कितनी ज्यादा है, mgh.
That means when a body of mass small m is taken from the surface of the earth to a height h above its surface, its gravitational potential energy increases by mgh. और ये जो फार्मूला है फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दिस इज वैलिड व्हेन वी टेक जीरो लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी। यानी कि जब हम कहते हैं कि किसी बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहां पे है, इन्फिनिटी पे। लेकिन अगर हम ये मान लें दैट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज जीरो, तो फिर मैं यहां क्या पुट कर दूंगा, जीरो। तो U2 मीन्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट ए हाइट h कितनी आ जाएगी, mgh। दैट मीन्स इफ वी टेक द gravitational potential energy, please note these words, if we take the gravitational potential energy of a body to be zero on the surface of the earth, then its gravitational potential energy at a height h above the surface of the earth will become, अब मैं इसको U ही लिख दूंगा, U2 नहीं लिखूंगा, it will become mgh। और ये फार्मूला आपने शायद 9th में ही पढ़ा हो, और यहाँ पे भी वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में मैंने आपको ये बताया था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। अब देखिए ये फॉर्मूला कब वैलिड है, इट इज वैलिड अंडर टू कंडीशंस। नंबर वन, पहली कंडीशन तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि दिस फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट ए हाइट h इज वैलिड और ट्रू इफ नंबर वन, the gravitational potential energy of the body on the surface of the earth is zero। तो पहली जो कंडीशन है वो है कि gravitational potential energy of the body on the surface of the earth should be zero। gravitational potential energy of the body, energy of the body is zero on the, is taken as zero भी लिख सकते हैं हम, is taken as zero on the surface of the earth, on the surface of the earth। इसका मतलब कि जो जीरो लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है वो बजाय इन्फिनिटी के हम कहां पे ले लेते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और दूसरी कंडीशन है नंबर टू, h is less than r, this is a second condition। so this formula for the gravitational potential energy of a body is valid under these two conditions। तो वैसे आम तौर पे हम किसी भी बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो लेते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और ये मान के चलते हैं कि हाइट जो है बॉडी की दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो हम फार्मूले यूज करते हैं mgh। जैसे हम कहें कि अगर कोई बॉडी जमीन से h हाइट पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है mgh, अगर वो रेस्ट पे है तो उसकी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, वहाँ पे mgh काइनेटिक नहीं है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी बन गई mgh प्लस जीरो, क्योंकि मैकेनिकल में काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों आते हैं, इक्वल टू mgh। अब मान लो उस बॉडी को मैं रिलीज कर देता हूँ, तो जो बॉडी नीचे आएगी उसकी हाइट कम होती जाएगी, और हाइट कम होने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, लेकिन उसकी ग्रेविटी के कारण, क्योंकि ग्रेविटी के कारण उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगी यूनिफॉर्म, विच इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और वेलोसिटी बढ़ने का मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। लेकिन किसी भी पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम निकालेंगे तो वो सेम ही रहेगा। और ये भी मैंने वर्क पावर एनर्जी वाले वीडियो में ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैंने स्टेट किया था और प्रूव किया था दैट इन द केस ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी द टोटल मैकेनिकल एनर्जी दैट इज द सम ऑफ द काइनेटिक एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल द पॉइंट्स। और वहां पे मैंने ये भी बताया था कि जब बॉडी जमीन पे आके गिर जाती है तो उसकी हाइट भी जीरो हो गई और वेलोसिटी भी जीरो हो गई। हाइट जीरो होने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, और वेलोसिटी जीरो होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई।
तो फिर कहाँ गई एनर्जी? अगर हम कहते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉय, सो वेयर डज दैट एनर्जी गो? द आंसर इज, जब वो चीज़ गिरती है तो साउंड पैदा होती है, एंड साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, और दूसरे हीट एनर्जी पैदा होगी वहाँ पे। अगर हम किसी तरीके से ये निकाल लें कि साउंड एनर्जी कितनी पैदा हुई, हीट एनर्जी कितनी पैदा हुई, और दोनों का फिर सम करें तो वो उतना ही आएगा जितनी के टोटल उनकी मैकेनिकल एनर्जी थी, दैट इज mgh। And that's all for today. I hope you must have enjoyed my lecture. So please like, share and subscribe to my channel. Thank you very much. Have a nice day.